तो ये सारी हमारी हेडर फाइल्स है, दीज आर आवर हेडर फाइल्स। ओके, इसके बाद ये जो है, ये जो पार्ट है जहाँ पर क्या किया है, फंक्शन डिक्लेरेशन किया है। ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू एज वेल एज आई एम विजिबल। ओके, द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ओके, if you are facing any problem, then just message me Yes, in the sir. chat. Okay, Chinmay, screen is visible? Yes. ओके ओके, सो यहाँ पर जो है ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ओके, आपको पता है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो डिक्लेरेशन में क्या करते हैं हम, केवल उस फंक्शन का रिटर्न टाइप बताते हैं, फंक्शन का नेम बताते हैं, और कुछ पैरामीटर्स यदि रहेंगे फंक्शन के लिए तो वो बताते हैं। तो फर्स्ट इज अ क्रिएट फंक्शन, नेक्स्ट वन इज अ इंसर्ट एट बिग। तो इंसर्ट एट द बिगिनिंग है इसका मतलब। ठीक है, तो सिंगली लिंक लिस्ट यदि है तो बहुत सारे केसेस हमने देखे थे सिंगली लिंक लिस्ट। लेट अस सपोज दिस इज योर सिंगली लिंक लिस्ट, आई एम ड्राइंग इट फॉर यू। Sorry, I am drawing for you again. It consists of 3 nodes. Let us suppose these are the 3 nodes of a single linked list. Right? So the first node is having a value 15, second node is having value 12, and the third node is having value 18. Right? And we are having these are the links. Okay, first to second node, second to third node, and last node is having a null. This is having null. And starting node is indicated by start or. Okay. This is your starting node, indicated by start. So if you want to insert in the beginning, okay, you can insert in the singly linked list in the beginning. So you want to insert the node at here, okay, in the beginning, or in a second case you want to insert a node, okay, at the end here, or in a third case you want to insert a node, okay, after some position, okay, you want to insert at here, or you want to insert the node at here. Okay, so there are 3 different functions we have consider: the beginning, end, and after some position. Then the next function is for a delete. Okay, if you want to delete a particular node in this particular singly linked list, then for that we are having a delete function. If you want to search particular node, then for that we are having a search function. And the last one is a display function. Display means we want to display all the nodes which are present in a single linked list. I think up to this part it is clear to you. Okay, you can make a note of it, right? So here we have created one structure. So here we have created one structure. Yesterday we have seen about this particular structure, right? So data type of a struct, okay, followed by name of the structure, that is node. Okay, this particular structure consists of two parts. One is the info means data or value. Okay, and the second part is the link means address to a next node. Okay, so this particular pointer, the link is a pointer variable, okay, identified by this particular star indicates link is a pointer variable. ये लिंक तो पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन हमें डेटा टाइप बताना है उसका, तो लिंक का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड होगा। क्यों स्ट्रक्ट नोड है? यदि लिंक पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करता तो उसका डेटा टाइप क्या आता, आईएनटी आता, हमने देखा है कल। ओके, ये यदि कैरेक्टर को पॉइंट करता तो उसका डेटा टाइप कैर आता, डबल को पॉइंट करता तो उसका डेटा टाइप डबल आता। लेकिन लिंक ये पॉइंटर वेरिएबल किसे पॉइंट कर रहा है, एक स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, इसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसके ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसके लिए हम एक स्टार्ट पॉइंटर बना के लेते हैं, और स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू क्या रखी है हमने, नल मतलब एट द बिगिनिंग में हमारा लिंक लिस्ट कैसे नल है, तो नल है, इसके लिए स्टार्ट क्या है हमारा, नल है। ओके, तो ये स्टार्ट की नल वैल्यू क्या इंडिकेट करती है कि हमारा लिंक लिस्ट अभी तक क्या है, एम्प्टी है, अभी तक लिंक लिस्ट बनाया ही नहीं है। okay, it is an empty state only, so start is pointing to a null value. okay, हमने देखा है एल्गोरिदम के अंदर, जब हमने एल्गोरिदम देखे थे तो और प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो हमने ये देखा है कि स्टार्ट इक्वल टू नल which indicates okay linked list was not created at all at this point। इसके बाद हम लिंक लिस्ट बनाएंगे।
ठीक है, तो हम ये प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, तो क्रिएट करेंगे लिंक लिस्ट एक तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हम आराम से जाएंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वी गो वन बाय वन। प्लीज रिप्लाई इन चैट। यहाँ तक क्लियर है आपको? स्टार्ट इक्वल टू नल का क्या मतलब है? सही क्लियर है? बताओ। येस सर क्लियर आहे. ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. बाकीच्यांना पण, बाकीचे पण सांगू शकतात. सिन्सिअर आहेत ते सगळे अटेंड व्यवस्थित करतात आणि ते त्यांना मार्क्स पण चांगले मिळतात. चांगले नाही, खूप चांगले मिळतात. 100% मार्क्स मिळतात. रेनाली काय प्रॉब्लेम आहे सांगा? त्या पॉइंट पर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे का? व्हॉट्सअपवर बरेच स्टुडंट ऍक्टिव्ह असतात पण सेशन मात्र अटेंड करत नाही. Chinmay, is any issue is there up to this discussion? Okay, I will go ahead. Okay, we are having a limited time, right? So then, No. yes, tell me, Chinmay. Okay. This is variable declaration. Okay, today there is a lot of network disturbance. What I am facing. I don't know, there is a problem with Zoom or network only. Okay, so we have seen this particular part. Now here there is a variable declaration. I will arrange one more meeting, don't worry. This is variable declaration and we are using all these variables, okay, in our program. So we will see it, okay, after we identify these variables. ठीक है, तो बाद में हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं. तो सेट बफ मतलब सेट बफर है ये. ओके, तो स्टैंडर्ड आउट कॉमा नल, इसका मतलब ये है कि आउटपुट आपको, आप आउटपुट को जो आपका आ रहा है वो बफर में जाएगा और आउटपुट स्ट्रीम को जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्रिंटफ के लिंक लिस्ट और बाद में हमने चॉइस दी है 1 फॉर क्रिएट, 2 फॉर इंसर्ट, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, 3 फॉर इंसर्ट एट एंड एंड सो ऑन. ठीक है, इसके बाद हम व्हाइल लूप ले रहे हैं और व्हाइल लूप के अंदर हम फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है. तो उसके बाद हम जो भी एंटर होगा यूजर से वैल्यू, ओके, 1 होगा तो क्रिएट आएगा, 2 होगा तो इंसर्ट एट बिगिनिंग आएगा और सो ऑन. तो चॉइस कौन देगा? हमें यूजर देगा. और कहाँ पर आएगा? ये स्कैनफ के अंदर आएगा. इसके लिए हमने n वेरिएबल को डिक्लेयर करके लिया है यहाँ पर. वी आर डिक्लेयरिंग दिस n वेरिएबल. n के अंदर क्या होगा? आपकी चॉइस की वैल्यू आएगी. तो 1 से लेके 7 8 तक बहुत सारी चॉइसेस है. 8 तो हमारा एग्जिट है, लेकिन 1 से लेकर 7 तक ये सारे ऑपरेशंस है जो हम क्या करते हैं, जो हम अपने सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं. तो SLL के जो भी ऑपरेशंस है उसके लिए क्या किया है, यहाँ पर चॉइस दी है 1 से लेकर 7 तक. तो जो भी चॉइस यहाँ पर एंटर होगा उसकी वैल्यू n में आएगी. यदि n की वैल्यू 1 है तो केस 1 में आएंगे हम, 2 है तो केस 2 में आएंगे एंड सो ऑन. तो ये आपको पता है, ये चीजें, ये नई चीज नहीं है आपके लिए. इसके पहले भी हमने देखा है, लिनियर क्यूब के समय, सर्कुलर क्यूब के समय, स्टैक के समय. ठीक है, अब मानते हैं हम कि हम केस 1 के अंदर है. यूजर ने क्या एंटर किया है? 1 एंटर किया है. तो 1 का मतलब क्या है? क्रिएट करना है, हमें सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है. तो अभी तक हमारा सिंगली लिंक लिस्ट क्या है? नल है, स्टार्ट की वैल्यू नल है. तो हम क्या करेंगे? अब क्रिएट करेंगे. तो क्रिएट करने हम जाएंगे, तो जब हमने ये एल्गोरिदम्स देखे थे तो उस समय हमने कुछ चीजें की थी इसके बारे में, करेक्ट? ठीक है, तो हम जब क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं? नोड के लिए हम मेमोरी एलोकेट करते हैं. तो हम क्रिएट के फंक्शन के अंदर आते हैं. ये जो डिक्लेरेशन है ये बाद में लिखते हैं.
कि पहले तो हम मैसेज देते हैं कि एंटर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट मतलब क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट के में क्या होगा, एक एक नोड बनाते जाएंगे, तो नोड के अंदर दो चीजें होगी, पहली चीज होगी डेटा होगा, तो डेटा की वैल्यू कौन देगा, हमें यूजर देगा, तो एंटर एलिमेंट बोलते हैं तो क्या आएगा, डेटा आएगा, okay, जो हमें यूजर देगा, यदि यूजर ने 10 दी है वैल्यू तो यहाँ पर 10 आ जाएगी। एक बार यूजर की जो वैल्यू है वो हमने डेटा में ले ली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नोड को पहले क्रिएट करेंगे, ये 10 को हमें कहीं ना कहीं स्टोर तो करना होगा, ओके, तो इस नोड को पहले हमें क्रिएट करके लेना पड़ेगा, इस नोड को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैलॉक फंक्शन यूज करते हैं। और मैलॉक फंक्शन का काम क्या है, कि मैलॉक का काम यह है कि डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करना है, हमने ये कभी देखा है इसके पहले, डायनेमिक के नोट डाउन इट इन योर नोटबुक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। तो दो तरह का मेमोरी एलोकेशन होता है, एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड द सेकंड वन इज द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है, जो हमारे सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है, मान लो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, तो ये सारे डेटा टाइप के लिए कितनी मेमोरी लगेगी ये फिक्स है, हमें पता है पहले से, जब हमने सी पढ़ा तभी उसी समय आपको पता था, स्टार्टिंग के चैप्टर में दिया था कि इंटीजर के लिए कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती है, फ्लोट के लिए कितनी लगती है। तो जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वेदर इट इज सी और सी प्लस प्लस और जावा, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज देयर, जैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसी समय उसके जो डेटा टाइप है, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है, उसके लिए कितनी मेमोरी लगती है ये हमें पता चलता है, पता होता है एक्चुअली, उसके लिटरेचर में दिया हुआ होता है। तो यही सारे डेटा टाइप जो सिस्टम डिफाइंड है, उनके लिए जो मेमोरी लगती है ये हमें पहले से पता है, उस मेमोरी को बोलते हैं हम स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्रिएट करते समय, ओके, इस केस में हमने इंटीजर डेटा, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया है, इस समय जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखो आप किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है इन्फो नाम का, ठीक है, और बाद में क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है। ये ऐसे भी हो सकता है, हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल लिए, इन्फो वन दिया, कॉमा इन्फो टू दिया, और बाद में एक पॉइंटर वेरिएबल दिया, तो एक स्ट्रक्चर के नोड के अंदर दो वैल्यूज है, इन्फो वन भी है, इन्फो टू है, तो इन्फो वन इन्फो टू यदि दो इंटीजर वेरिएबल रहेंगे, तो उस समय क्या होगा, कि ज्यादा मेमोरी लगेगी, ओके, तो स्ट्रक्चर के लिए कितनी मेमोरी लगती है ये हमें पता नहीं है, हमें कब पता चलेगा, रन टाइम में पता चलेगा, ओके, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो जब जब हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना होता है, कब करना होगा, हमें स्ट्रक्चर के अंदर करना होगा, ओके, तो उस समय हम क्या करते हैं, मैलॉक फंक्शन यूज करते हैं, और मैलॉक फंक्शन के अंदर जो भी हम देंगे उतनी मेमोरी क्या है, क्या होगी, क्रिएट होगी, तैयार होगी और हमें मिल जाएगी। तो मैलॉक के अंदर यहाँ पर क्या दिया है, देखो, साइज ऑफ स्ट्रक्ट ऑफ नोड, तो साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ये भी एक फंक्शन है सी का, तो ये फंक्शन क्या करता है, कितनी मेमोरी चाहिए पर्टिकुलर डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करता है, यदि हमने साइज ऑफ आईएनटी दिया तो आईएनटी के लिए कितनी मेमोरी लगती है पता चलेगा, साइज ऑफ कैर दिला तो कैर के लिए कितनी मेमोरी लगेगी ये पता चलेगा, यदि हमने साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड दिया तो उस स्ट्रक्चर के लिए कितनी मेमोरी लगेगी ये पता चलेगा। ठीक है, जो भी मेमोरी लगेगी, 4 बाइट्स लगे या 8 बाइट्स लगे, 10 बाइट लगे, ये सारी मेमोरी मैलॉक क्या करेगा, अलोकेट करेगा, डायनेमिकली अलोकेट करेगा, और कुछ किसे देगा, ये टीएमपी को देगा। तो ये टीएमपी कैसे बनाया हमने, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर नोड से ही बनाया। तो ये टीएमपी क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, उस पॉइंटर वेरिएबल को हमने कितनी मेमोरी दी है, जितनी स्ट्रक्चर के लिए जरूरत है उतनी दी है। तो ये टीएमपी बनाने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत है, और टीएमपी की मेमोरी कैसे ली हमने, मैलॉक फंक्शन से। तो यदि 10 बाइट्स की जरूरत है तो टीएम के लिए 10 बाइट्स आएंगे, 20 बाइट्स की जरूरत है तो टीएमपी के लिए 20 बाइट्स आएंगे, एंड सो, ओके। तो मैलॉक का आपको यूज समझ में आया। तो ये टीएम के जो हमें टीएमपी बनाएंगे, एक टीएमपी क्या होगा, एक नोड होगा, एक टीएमपी क्या होगा, एक नोड होगा। ये टीएम के अंदर दो चीजें होंगी, एक पार्ट क्या होगा, डेटा होगा, ओके, और दूसरा पार्ट क्या होगा, लिंक होगी, मतलब इन्फो होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, लिंक होगी। तो पहले जो इन्फो है, इन्फो में क्या आएगा, टीएमपी, टीएमपी टेंड्स टू, टीएमपी देखो हमने कैसे लिखा है, टीएमपी टेंड्स टू इन्फो, मतलब
टीएमपी का जो इन्फो पार्ट है, दो पार्ट है टीएमपी के अंदर, इन्फो है और लिंक है। टीएमपी का जो इन्फो है वो क्या है, आपका डेटा है। और डेटा कहाँ से आया है, यूजर ने दिया है। यदि यूजर ने 10 दी है डेटा की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या है, इन्फो में 10 आएगी। 20 दी है तो 20 आएगी, 15 दी है तो 15 आएगी। और टीएमपी का जो लिंक है वो क्या बनाया, नल बनाया। क्यों बनाया है नल, ये क्योंकि हमें केवल एक नोड की जानकारी अभी तक आई है। जब हमें नेक्स्ट नोड की जानकारी मिलेगी तो नेक्स्ट नोड कहाँ पर है, उसका मेमोरी लोकेशन कहाँ है, उसका मेमोरी लोकेशन कहाँ है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेंगे। तो अभी के लिए क्या है, नल है। क्यों अभी के लिए नल है, अभी के लिए एक ही नोड है, सिंगल नोड है। आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आपको केवल एक स्टेशन पता है, नेक्स्ट स्टेशन की जानकारी नहीं है। इसके लिए हम लिंक क्या बनाई है, हमने नल बनाई है। ठीक है, जब हमें नेक्स्ट स्टेशन की जानकारी होगी तो लिंक को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। तो बाद में क्या पूछा है, देखो, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। ओके, अभी तो स्टार्ट इक्वल टू नल है, तो स्टार्ट क्या बनेगा, टीएमपी बनेगा। टीएमपी एंड स्टार्ट एक ही बनेगा। यदि नहीं होगा, स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। सो दैट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट मीटिंग। Okay, so I will stop this meeting. I will again start a new meeting. Okay, and I will share a code with you, meeting code with you. Okay, thank you for watching.